are all fine examples of the intellectual richness that Bihar possesses. As the Commandant of Officers Training Academy, Gaya, we along with BIPAD are the two major institutions who are responsible for training the future officers and the future leaders, administrators and managers of this country. And thus we both are partners in building the future of this country. Today is not the first day or the day when you're getting into a government job. You are actually getting an opportunity and taking an oath to serving the 13 crore population of Bihar. In you, actually, I see the future of Bihar. And you will take on various roles, right from a BDO in a district to an SDM to a DSP or maybe a statistics officer somewhere. But then all of you are the ones who will shape the future of Bihar. And I wish you the very best towards that. Although not as experienced as our Honorable Governor, there are a few lessons that we picked up in the army along the period of time. I'd just like to, in very short, relate a few so that probably they could act as few tips to you as you progress towards serving the state. In the army, they say the amount of brass on your shoulders is not as worthy as the amount of trust your people, your subordinates and your soldiers have in you. So your character is what builds up that faith and trust of your subordinates in you. The same situation would occur to you. You would get various prominent posts and appointments in the future. But if you act as per your conscience and if you are correct in all your dealings, your reputation will carry much, much beyond what your tenure and your appointment would be. In fact, the biggest measure of a person is the reputation and his standing probably after his transfer or after his retirement. Service before self is a motto of the army. The same can apply to all of us. Let us all give more than what we can take. So, at a personal level also, I maintain this so kind of a bank balance wherein I would like to do more to a person than what I would expect him to do for me. The same applies to public service as well. And thirdly, my teacher in school used to say, I want sincerity, not efficiency. It's not that he didn't want efficiency, but he said sincerity is more important than efficiency. In the same way, I would request you all in your attitude to be positive, growth-oriented and result-oriented. Look for results and not the reasons for a debacle or a failure. So be result-oriented, be progress-oriented. That's what I would request you all. A few very quick management tips. You all would be in policy-making roles. Please make policy which affects the majority of the population. And the reason of that policy also should be the actions or the problems of the majority of the population. Take decisions which are both acceptable and implementable, or otherwise they might end up being utopian and not actually implemented on ground. Plan for contingencies because situations will automatically keep changing all the time. The next 1 year is going to be a busy time for you. I wish you all the very best, and I wish all the candidates of the 70th batch the very best in their successful endeavors ahead. Thank you. Jai Hind. सर के प्रेरणादायी उद्बोधन हेतु एवं मार्गदर्शन हेतु हम आभार प्रकट करते हैं। अब वह गौरवपूर्ण क्षण है जब माननीय राज्यपाल महोदय बिहार अपने की नोट एड्रेस के माध्यम से नवचयनित अधिकारियों एवं प्रशिक्षणार्थियों को विशेष विषय पर संबोधित करेंगे। नवनियुक्त अधिकारियों को ओरिएंटेशन, अभिमुखीकरण तथा राष्ट्र निर्माण
एवं समाज के वंचित वर्गों की सेवा के प्रति प्रशिक्षणार्थियों में प्रेरणा एवं उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना है। मैं माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन सर से विनम्र आग्रह करती हूँ आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हमारे पद को आलोकित करें। आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह सर, माननीय राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव महोदय से विनम्र आग्रह करती हूँ आप सभी का मार्गदर्शन करें। 70वीं बीपीएससी के इस कंबाइंड जो आज इंडक्शन कोर्स हो रहा है, इसमें आज के मुख्य अतिथि बिहार के माननीय राज्यपाल, यहाँ उपस्थित गेस्ट ऑफ ऑनर लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह जो कमांडेंट हैं अपने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के, यहाँ उपस्थित मैडम कमिश्नर मैडम गया की सफीना मैडम जो एडीजी डिपार्ट भी हैं, जिलाधिकारी गया शशांक, जिलाधिकारी नवादा रवि प्रकाश जी, एसएसपी गया सुशील जी, संजय जी एडीजी बीपार्ट, कर्नल नदीम ओएसडी टू ऑनरेबल गवर्नर। आज यहाँ करीब 1800 हमारे प्रशिक्षणार्थी हैं जो 70वीं बीपीएससी से सिलेक्ट होके आए हैं 29 डिफरेंट सर्विसेज में। कुछ लोगों ने शायद मुझे देखा भी हो, मैं आपके कुछ इंटरव्यू बोर्ड का पार्ट भी रहा हूं। इस सेवा में जब आप आते हैं तो आपको ये सबसे पहले याद रखना चाहिए कि आप बिहार के इस लगभग 13 करोड़ आबादी में से सिलेक्टेड फ्यू हैं जिन्हें यह मौका मिलता है प्रशासनिक रूप से राज्य सरकार की जो वरीयतम सेवाएं हैं उन सेवाओं का अंग होने का। और जब आप उन सिलेक्टेड फ्यू में से हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी होती है। इसलिए उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ये आपको सबसे पहली तैयारी जो है वो यहाँ पे की जा रही है। लेकिन ये जो सीखने का क्रम है वो आपके पूरे कैरियर भर चलेगा। जितने दिन भी आप सेवा करेंगे, 25 साल, 30 साल, 35 साल, उस पूरे दौरान आपके सीखने का क्रम चलता रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कह सकें कि अब मैंने सभी कुछ जान लिया है। तो सबसे पहली जो चीज है वो याद रखना चाहिए कि ये जो लर्निंग है जिसकी शुरुआत आज है, ये लर्निंग उस दिन जाके खत्म होगी जिस दिन आप इस सेवा से रिटायर करेंगे। ये कंटिन्यूअस चलता है, हर दिन आप कुछ नया सीखते हैं। दूसरा, आप सभी से सीखते हैं और सभी से सीखने की कोशिश करनी चाहिए, न केवल अपने सुपीरियर से जो आपके बॉस हैं, बल्कि अपने कुलीग से, आपके साथ काम करने, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनसे, आपसे हर रोज आपके काम के क्रम में बहुत सारे सामान्य लोग जो मिलने आएंगे उन सभी से, हर व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और अपना माइंड खुला रखना चाहिए कि हम हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ सीखेंगे। अल्टीमेटली आज के समय में जो नॉलेज है वो नॉलेज ही पावर है। जितना आपको अपने काम के बारे में जानकारी होगी उतने ही आप अच्छे ऑफिसर और पावरफुल ऑफिसर कहे जाएंगे। पावर पद से नहीं होता है, उस चेयर से नहीं होता है। पावर आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपके नॉलेज से होता है। आपके चेयर के कारण जो आपको पावर होती है वो वहीं तक लिमिटेड होता है जब तक कि आपका सामने वाला व्यक्ति आपके नजरों की सीमा के अंतर्गत हो। द मोमेंट वो आपके नजर से बाहर चला जाएगा, उसका वो रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा आपके लिए, अगर
वो रिस्पेक्ट केवल आपके चेयर के कारण है, लेकिन अगर वो रिस्पेक्ट आपके नॉलेज, आपके लीडरशिप क्वालिटी के कारण है, तो वो हमेशा बना रहेगा और वो केवल आपके सामने रहने या नहीं रहने से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज कि जब आप इस सेवा में आए हैं तो उन परिस्थितियों को याद करिए जब आज से 1 महीना पहले जब तक रिजल्ट नहीं निकला था तब तक आप एक आम आदमी के हिस्सा थे, तो उस आम आदमी का जो दर्द होता है, उसको सिस्टम से जो एक्सपेक्टेशन होती है, उस एक्सपेक्टेशन को कभी भूलिएगा नहीं। अब आप उस लिमिट के इस पार आ गए हैं, लेकिन आपको हमेशा वो याद रखना होगा जब आप इस लिमिट के उस पार थे, एक आम आदमी थे, तो आम आदमी की सिस्टम से जो आशाएं होती हैं, वो आशाओं को पूरा हर हालत में करना है। उसके लिए जरूरी है सबसे ज्यादा नॉलेज के अलावा इंटीग्रिटी की, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, एथिकल इंटीग्रिटी, इन सभी चीजों की आवश्यकता है, तभी आप एक अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय हम लोग सभी लोगों के श्रद्धेय हैं, जिनसे हर पल, और मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ काम करने का भी अवसर मिला है, और हम चाहते हैं कि आप भी उनसे आज कुछ प्रेरणा लें। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह सर की उद्बोधन एवं मार्गदर्शन हेतु आभार प्रकट करते हुए माननीय राज्यपाल बिहार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन सर से हम विनम्र आग्रह करते हैं आशीर्वचन एवं मार्गदर्शन देकर हम सभी के पथ को आलोकित करने की असीम कृपा करें। ऊर्जावान करतल ध्वनि से स्वागत करें। Pranam. Can you hear me at the back there? On top there? Great, wonderful. Thank you so much. मजा आ गया इस हॉल को देखकर। 3 स्टोरी का हॉल तो बहुत सालों से नहीं देखा। The Commandant, Officers Training Academy, Lieutenant General Sandeep Singh, Ati Vishis Seva Medal. ACS to Governor श्री दीपक कुमार सिंह जी, जो अभी बहुत बढ़िया आपको उन्होंने संबोधित किया। एडीजी विपाड, गया कमिश्नर मगध डिवीजन डॉक्टर सफीना जी, एडीजी विपाड पटना श्री संजय कुमार जी, डीएम गया श्री शशांक सुभांकर जी, डीएम नवादा श्री रवि, एसएसपी गया श्री सुशील कुमार जी, distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of this course. एक तो मैंने ऑलरेडी कह दिया कि सबसे अच्छी चीज जो मुझे लग रही है, पहले to see a new generation of government servants in this beautiful hall. इसको देखकर मालूम होता है कि भारत सच में विकसित भारत 2047 बनेगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतना फॉर्चुनेट हूंगा कि आपके साथ बैठकर यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में 1400-1500 इतने सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ कभी बात करूंगा। The last time I spoke to an audience like this was at National Defense Academy, खड़कवासला, जहां 2300 लोग थे, मगर आज भी उससे कोई कम नहीं है। यहाँ पर 1500 लोग बैठे हुए हैं। Wonderful to see you all. Welcome to the fascinating world of government service. I want to welcome you in. मैं खुद 52 साल से गवर्नमेंट सर्विस में हूँ वर्चुअली। बीच में एक ब्रेक था थोड़ा, अदरवाइज 40 साल फौज में, and 6 years in the National Disaster Management Authority, and 5 months now as the Governor of Bihar, where I am a servant of the people. I continue to remain a servant of the people. All these years that one has served in government service, one has been essentially a servant of the people, nothing more. You can achieve a lifetime's worth in just one tenure
if you harness all your resources, maintain your character and provide the right leadership. आपको चुना गया है सिर्फ एक चीज के लिए, लीडरशिप. You are leaders now. याद रखिए, जो सबसे खतरनाक चीज होती है एक लीडर की जिंदगी में, वो होती है कि किसी भी स्टेज पर अपने आप को खुदा समझना, अपने आप को भगवान समझना, बिलीविंग दैट यू आर गॉड. अनफॉर्चुनेटली क्या है, द सिस्टम आपको सिलेक्ट करके बिठाकर यहां ट्रेन करके जगह जगह पर भेजकर, द सिस्टम डज नॉट केटर फॉर वन थिंग, एंड दैट इज दैट ह्यूमन बीइंग्स empowered like this sometimes start thinking themselves to be God. मुझे याद है मेरा आखिरी अपॉइंटमेंट फौज का एज मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन आर्मी. मैं जा रहा था साउथ ब्लॉक के सीढ़ियों से ऊपर एक हॉल के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहां मेरे 140 ऑफिसर बैठे थे जो मैनेज करते थे पूरे सिस्टम को. मोस्ट पावरफुल अपॉइंटमेंट ऑफ द इंडियन आर्मी, मिलिट्री सेक्रेटरी. आप संदीप सिंह साहब से पूछिए तो बताएंगे आपको. पूरा करियर मैनेजमेंट, आपकी पोस्टिंग एक जगह से दूसरी जगह, आपको फॉरेन अपॉइंटमेंट में भेज सकते हैं, दुनिया भर की चीजें कर सकता है मिलिट्री सेक्रेटरी. और मैं चल के ऊपर जा रहा था, मैंने कहा मैं अपने अफसरों को क्या एक सबक बताऊंगा, इस पूरी टॉक का एक सबक क्या बताऊंगा. एकदम से दिमाग में एक चीज आई, and I started my talk by telling the audience there is only one way by which you can serve the service into which you have entered. Play friend, not God. Play friend, not God. गवर्नमेंट सर्विस में सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है, जैसे ही दिमाग पड़ जाता है I am the most powerful person, I am God. मैं फोन नहीं उठाऊंगा किसी का, मैं नमस्कार नहीं करूंगा किसी को, जो मेरे दरवाजे पे आएगा उसको मैं कह दूंगा चले जाओ, वक्त नहीं है तुम्हारे लिए. Ultimately, remember one thing, you have entered government service only for one thing, to serve the people of the state, to serve the people of Bihar. The people of Bihar have given you the honor कि आप आकर और उनको सर्व करें. अगर इस शुरुआत में ये सोच विचार आपके दिमाग में आ गया है, तो यू विल मेक अ ग्रेट सक्सेस ऑफ योर करियर. लेट मी टेल यू चंद एक बातें हैं, फ्यू पॉइंट्स. आई थॉट, रात को मैं सोच रहा था कि कन्वेंशनल टॉक दूं आपको मैं, ये करो वो मत करो, ये करो वो मत करो. नहीं, वो जरूरत नहीं है. प्रैक्टिकल, सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो मैं अपनी जिंदगी से देख रहा था. I start with one basic thing. जब आप बिहार के अंदर हैं, बिहार के गवर्नमेंट सर्विस के अंदर हैं, इतना बड़ा ओहदा आपको मिल रहा है, the start point of your service, the one thing you cannot deny yourself is knowledge, ज्ञान, विद्या. जिस डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जिस ऑफिस में जाएंगे, जहां जाएंगे, जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे, you have to start picking up on the basics of knowledge. For example, अगर कोई सिविल सर्विस में किसी डिस्ट्रिक्ट में जा रहा है, किसी अपॉइंटमेंट पर, you have to know इतिहास वहां का, कल्चर वहां की, संस्कृति एंड इतिहास वहां की, सिविलाइजेशनल इंफॉर्मेशन अबाउट बिहार. जिसको बिहार का सिविलाइजेशन नहीं मालूम कि बिहार जो है इज द सिटाडेल, कोर सेंटर, भारत का सिविलाइजेशन जो है वो बिहार है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट, और उससे आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा that you are part of a great state which is now moving ahead and will become probably one of the greatest states of India once again. याद रखिए 3rd 4th century AD, जब हम मगध से एम्पायर पूरा फैला था साउथ ईस्ट एशिया में, ग्रेटर इंडिया जब पूरा बना था, कहां से बना था? ये इस सिविलाइजेशन से, यहां से बना था. The importance of understanding Bihar's social geography. Social geography क्या होती है? Geography तो आप समझ जाएंगे, भूगोल,
बॉर्डर्स कहाँ हैं, रिवर्स कहाँ हैं, पहाड़ कहाँ हैं, जंगलात कहाँ हैं, शहर कहाँ हैं, सड़कें कैसी चलती हैं, मगर साथ में दिमाग में एक मैपिंग करनी पड़ेगी आपको, एक सोशल मैपिंग, किस तरह के लोग कहाँ किस जगह पर रहते हैं, अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन दैट डेमोग्राफी, बेस्ड ऑन दैट सोशल मैपिंग, यू विल हैव टू डील विद द पीपल। उसके बाद एक चीज जिसके अंदर आजकल मैं बहुत फोकस्ड हूं, बिहार की स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी की। ये कोई नॉर्मल स्टेट नहीं है, दिस इज ए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट स्टेट ऑफ इंडिया। अगर एक छोटी सी चीज भी देख लें, आपकी 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार की, नॉर्थ ईस्ट बिहार की, विच ओवरलुक द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो भारत को नॉर्थ ईस्ट भारत के साथ मिलाता है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आपकी वहां पर, हरारा, पूर्णिया, किशनगंज, दैट एरिया कंप्लीटली। Now, if you do not know this knowledge, you will never know the strategic importance of Bihar. बाकी 7 डिस्ट्रिक्ट आपकी नेपाल के साथ बॉर्डर करती है। लोग समझते हैं दिमाग में कि बिहार जो है वो हिंटरलैंड स्टेट है। मैं दिमाग में हर दफे सोचता हूं कि बिहार एक स्ट्रेटेजिक बॉर्डर स्टेट है, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है तो हमको उसके तरह नेशनल सिक्योरिटी में इसको जोड़कर देखना चाहिए। उसके मुताबिक पिक्चर एवरी पार्ट ऑफ बिहार इन योर माइंड। एसीएस साहब से जब मैं बात करता हूं, इनसे मैं एक जगह की एक परहैप्स इनका गांव का नाम ले लूं तो इनको मालूम है कि बिहार में कहां है, क्योंकि इनके दिमाग में मैप बना हुआ है कि बिहार की पूरी का पूरा लेआउट क्या है। मगर ये 30 साल के बाद, 20-25 साल के बाद ये काबिलियत आए, अगर हो सकता है तो ये काबिलियत शुरू में आ जाए। Why not understand this well in the beginning? कमरे में अपने जरूर एक मैप बिहार का टांगिए, all districts of Bihar marked on it, major roads marked on it, so you understand connectivity क्या है बिहार की। आप समझेंगे कि ये अनइम्पोर्टेंट चीज है, इसमें क्या है भूगोल बिहार का। इट्स नॉट अ, मैं आपको बताऊं, एज अ कमांडर, एज अ कोर कमांडर इन कश्मीर, मैं जब हेलीकॉप्टर में चलता था लाइन ऑफ कंट्रोल के को देखने के लिए या एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस का कहीं बयाना करने के लिए, मैंने कभी भी अपने साथ मैप नहीं रखा। क्यों? क्योंकि मैप मेरे दिमाग में था, चिपका हुआ है यहां पर, मैप यहां चिपका हुआ था।